ओके, सो फर्स्ट हम ट्राइंगल्स करते हैं, देन हम फोर साइडेड फिगर पे जाएंगे, क्वाड्रिलेटरल्स पे। ठीक है, सो I'm drawing a triangle and you have to find the value of one of the angles. So can you tell me what is the sum of the angles of a triangle? 180. 180, right. So they have given this angle as 72 degree, this as 70 degree, and this you have to find. So how do we find it? Ma'am, we have to add angle A and B and subtract it with 180 degrees. A plus B plus C equal to 180 degree, right? Suppose A is 72 degree, B is 70 degree, and then we have to find C. So tell me what is the value for angle C? Angle C not, this is Z. This is C, suppose this is C. So find this angle and tell me what's this value? Ma'am, 38 degrees. 38 degrees, right. So question number 2. Question number 2 is find x if the angles of a triangle are x degree, x degree, x degree. Second is x degree, 2x degree, 2x degree, and third part is 2x degree, 4x degree, and 6x degree. So how do we find? How do we Ma'am, found the X will value? be equilateral, right? What are you saying? Ma'am, X, the first one should be equilateral, right? Yeah, it would be equilateral, but yes, all the angles are equal. So, but here we have to add the sides. So suppose add the angles. So suppose x plus x plus x is equal to 180 degree. So addition of 3x would be addition of x would be 3x. So x would be 180 degree divided by 3. So in the same way, you have to find second and third. So first of all, tell me the value of x in the first part. Ma'am, 180 by 3. Yes, 180 by 3 is how much? 60. 60 degree, correct. So value of x would be 60 degree. Now here the value of x would be how much? Ma'am, 2 plus 2, 4. So what is X? 60. 4. 2 plus 2 is 4 plus 1 is 5. 5x is equal to 180 degree. So x is 180 divided by 5. Hmm. One 180 divided by 5 is 36. 36. Very good. Now here the value of x in third part. 2x, 4x and 6x.
2 plus 4 plus 6. 12. Hmm. 12x. 12 by 180. 180 by 12. 180 by 12. Yes. 180. Ma'am, 15. 15 degree. Yes. Value of x is 15 degree. Right. So now question number 3. For half an hour, we'll do triangles, and for half an hour, we'll do quadrilaterals. Okay. Okay, ma'am. So one angle of a right angled triangle is 70 degree. So find the other acute angle. How we'll do this? One angle. If the triangle is right angle triangle, so then one of the angle would be 90 degree, right? Yes, ma'am. So 90 degree by 180. A plus B plus C is equal to 180 degree. So suppose A is right angle triangle, 90 degree. Other angle we have given 70 degree. And third we have to find. So find angle C. Yes, so angle C would be Ma'am, 20. 20 degree. Very good. So C would be 20 Ma'am, degree. how did 70 degree came? 70 degree we have they have given us in question that one of the angle of a right angle triangle is 70 degree. So 70 degree they have given, and secondly they are saying it's a right angle triangle, so that means right angle triangle. So that means this angle is 90 degree. Okay. Okay, ma'am. Yes, so 90 degree and one of the angle 70 degree they have given, and we have to find the third angle. So that's why. So now next question. In triangle ABC, angle B is equal to angle C and angle A is equal to 100 degree. Find angle B. So how we'll do this? First of all, you tell me what do you understand from this question? How we'll do this? In a triangle ABCB equals angle C and A equals 100 degrees. Now, so first we know that it is 100 degrees by one side, which is obtuse. So we can write A as 100. A is 100, they have given, right? And angle B and C are equal.
So they are 80. we can put angle C as B only. Yes. So this is B is angle B plus C, we can write angle B. Ma'am, we can write angle C also, right? But if we write angle C, then both of the values would be different. We either we can make this as angle C, but they are asking to find angle B. So we'll make C को भी हमने angle B बना लिया, ठीक है? So 100 plus angle B means twice of angle B equal to 180 degrees. So find the value of angle B. How much is angle B? Ma'am, 100 minus 180 is 80 and 80 divided by 2 is 40. So 40 will be. Angle B is 40 degree, right? So now you have to construct a triangle using arc. Remember, we have done these questions that how by making an arc we can form a triangle. So construct triangle ABC when AB equal to 6 centimeter, BC equal to 8 centimeter and AC equal to 4 centimeter. So how you will make the triangle? How you will form the triangle? Yes, नविष्ठा, सबसे पहले क्या करोगे? Construct triangle ABC when AB is equals 6 centimeter, BC equals 8 centimeter and AC equals 4 centimeter. Ma'am, they are saying the length between the points. They are saying the length of the sides of a triangle. So first of all हम AB को लेंगे. AB हमने स्केल से 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लिया, ठीक है? इसके बाद हम बताओ क्या करेंगे? Ma'am, we have to draw point C. Point C. How? Using a compass, you have to place the pin side here and the pencil side here and mark a arc. So BC is 8 centimeter. So B, and suppose this is 8 centimeter. So you place a mark of 8 centimeter. You draw an arc, right? अब आपको next बनाना है AC. So AC of 4 centimeter. So now here you place 4 centimeter. उसके बाद आप ये जो हमारे पास पॉइंट आया, ये पॉइंट C आएगा. अब आप ये दोनों साइड्स को ज्वाइन कर दोगे, ठीक है? ठीक है? ओके मैम. तो इस तरह से हमने ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया. अब नेक्स्ट तुम मेरे को बताना कि ये वाला हम ट्रायंगल कैसे ड्रॉ करेंगे. AB is given to us as 3.5 centimeter. AC is 4.8 centimeter and BC equals to 5.2 centimeter. So construct a triangle. So कैसे ड्रॉ करोगे?
यस नविष्ठा, कैसे ड्रॉ करोगे? Mom, first we have to draw the line A and B 3.5 centimeters long. राइट, ये हमने 3.5 ड्रॉ कर ली। And we put the compass needle on B हाँ, and make an arc. ऑफ हाउ मच? 5.2 centimeters. एक सेकेंड नविष्ठा। यस, सो बी पे हम पॉइंट करके एक 5.2 की आर्क ड्रॉ करेंगे, राइट। उसके बाद Mom, then we have to put the needle on A and draw it on the centimeter of 4.8. so we put another arc of 4.8, so we get the side C, right? Yes, अब ma'am. हम क्या करेंगे? we join it with point C और ये हम अपना ट्रायंगल फॉर्म कर लेंगे, राइट? Yes, ma'am. Yes. So now next is next question. AC is given as 4.5 centimeter. BC is 6 centimeter and angle C is given as 60 degree. तो कैसे ड्रॉ करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? अच्छा ये बताओ। Mom, we have to draw A and C. राइट, हमने AC ड्रॉ कर लिया 4.5 सेंटीमीटर का स्केल से, राइट। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने हमें एंगल सी दिया है 60 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पे अपना प्रोटेक्टर को रखते हैं और प्रोटेक्टर से फिर हम 60 डिग्री एंगल ड्रॉ करते हैं, तो जैसे ये 90 होता है अगर, राइट, तो 60 इतना आएगा, राइट। तो हम क्या करते हैं? एक यहां से रख के एंगल ड्रॉ कर लेते हैं 60 डिग्री का, ठीक है। तो ये हमारा 60 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे? हमें बी और सी कितना दिया हुआ है? 6 सेंटीमीटर। हम ये पॉइंट पे रख के 60 डिग्री का एंगल है हमारे पास, हम यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? सिक्स सेंटीमीटर का आर्क लगाएंगे और 60 डिग्री हमारे पास ये एंगल है, उसके बाद हम ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। इस एंगल की वजह से हमने, ये जो एंगल हमें दिया हुआ था सी, इसकी वजह से हमें सी पॉइंट मिल गया और ये पॉइंट क्या है? पॉइंट बी, राइट। राइट नविष्ठा? Yes, ma'am. अभी एक क्वेश्चन बताओ, एक क्वेश्चन लिखती हूँ मैं। BC is 3 centimeter, AC is 4 centimeter, AB equal to 5 centimeter. So you have to measure angle AC
सी बी आपको मेजर करना है और ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है। सो सबसे पहले क्या करोगे, यस नविष्ठा क्या करोगे? Mom, first we have to draw AB. राइट, ए बी हम 5 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे? Put the needle and draw an arc बी और सी हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, of 3 तो centimeters. 3 सेंटीमीटर सपोज कि यहाँ आएगा, 3 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। फिर ए सी हमें दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ए एंड सी ये 4 सेंटीमीटर की आर्क लगाई। फिर हमने ये ज्वाइन कर दिया, राइट। और फिर ये आ गया हमारा एंगल सी। तो हमें क्या है, ये मेजर करना है। हम अपना प्रोटेक्टर जब इस पे रखेंगे तो प्रोटेक्टर पे जितना एंगल आ रहा होगा, एंगल ए सी बी का, ठीक है, जैसे हमने प्रोटेक्टर प्लेस किया अपना, राइट। Yes, तो ma'am. जो हमारा एंगल आ रहा होगा जितना यहाँ पे, तो वो हम एंगल, उसके हेल्प से हमें पता चल जाएगा कि ये एंगल कितना आ रहा है, ठीक है, एंगल ए सी बी। चलो अभी क्वाड्रिलेटरल्स के क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। इस वाले चैप्टर में यही है ना नविष्ठा, ट्रायंगल्स में एंगल को फाइंड आउट करना और एंगल ड्रॉ करना, हाँ वो ट्रायंगल ड्रॉ करना, यस नविष्ठा, Yes, ma'am. ओके। सो अभी हम क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वाड्रिलेटरल के क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, एक 4 साइडेड फिगर होती है, राइट। तो इसका जो एंगल्स होते हैं, तो the total of all the angles equal to how much? क्वाड्रिलेटरल के इसके जो 4 एंगल्स होंगे, बिकॉज ये 4 साइडेड फिगर होती है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज हाउ मच नमिष्ठा? हाउ मच इक्वल टू हाउ मच? 180. 180 और 360? 180. 360 Four-sided degree. figure is 360. It's a 4-sided figure, राइट। क्वाड्रिलेटरल क्या होती है, 4 साइडेड फिगर होती है। जो 3 साइडेड होती है वो ट्रायंगल होती है। ट्रायंगल का एडिशन जो होता है सारे एंगल्स का, वो 180 डिग्री होता है, और जो क्वाड्रिलेटरल का होता है वो 360 डिग्री होता है, ओके। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 angles of a quadrilateral are 89 degree and 113 degree. So if the other 2 angles are equal, so find the equal angles. तो इसको कैसे करेंगे नमिष्ठा? हमें जो एंगल फाइंड आउट करना है, सपोज कर लिया हमने वो क्वाड्रिलेटरल are 189 and 113. सपोज हमने जो एंगल हमें फाइंड आउट करना है वो हमने x And first we have to add both the angles.
तो पहले हमें दो एंगल दिए हुए हैं 189 एंड 89 डिग्री प्लस 113 डिग्री प्लस जो हमें बोला है इफ द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, तो हमने एक एंगल अगर सपोज कर लिया x तो दूसरा भी x ही होगा, राइट? और इन सब का एडिशन क्या होगा? 360 डिग्री. सो फाइंड द वैल्यू ऑफ x हियर. व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ x? Ma'am, we have to add both the ones, right? Yes, it would be 2x, both the x plus x would be 2x. And the second one is 202. This is 360. What you are saying? Ma'am, The addition, 202. the addition of this Yes, ma'am. 202 plus 2x equal to 360 degree. Now Navishta? Now we have to divide it by 2, which First- is 79. Okay, so x is 79 degree, right? Right, Navishta? Yes, ma'am. Right. Correct. So now next question is, you can have water. No, ma'am, I'm having water. Okay. Angles of the quadrilateral are 4x degree plus 5x plus 2 degree plus 7x minus 20 degree plus 6x plus 3 degree. So you have to find the value of x and the value of each angle. How you will do this, Anushka? Angles of a quadrilateral are 4x plus 5x plus 2. Ma'am, I didn't understand this. हमको ये चार एंगल दिए हुए हैं. This is angle A, this is angle B, this is angle C, and this one as angle D. So हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है. तो हमको क्या करना है? 4x plus 5x plus 2 is how much? अगर हम ये लिखेंगे, हम इसका ब्रैकेट ओपन करेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे? 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है अंदर, तो ब्रैकेट ओपन होएगा तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो इधर क्या वैल्यू आएगी? 4n plus 5x plus 2. I don't know, ma'am. 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे x प्लस 2 से, तो क्या होएगा? 5x प्लस 10. 5 2 is 10.
5 didn't understand this. 5 को अगर मल्टीप्लाई करोगे इधर ब्रैकेट से तो क्या होएगा? 5 को अगर x से मल्टीप्लाई किया, ये वाले का मतलब क्या होता है? अगर ब्रैकेट के बाहर कोई वैल्यू लिखी है और कोई साइन नहीं लगा, प्लस माइनस कुछ नहीं लगा, तो मतलब ये मल्टीप्लीकेशन है, राइट? 5 को अगर हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 5x, राइट? हाँ मैम। प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? हाँ नविष्टा, 5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना होएगा? 5 10 10, तो 10 डिग्री। प्लस हमें थर्ड क्या दिया हुआ है? 7x माइनस 20। 7x प्लस का साइन है, प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, माइनस 20 डिग्री। 7x डिग्री माइनस 20 डिग्री, फिर आएगा फिर से प्लस। अब 6 बाहर है ब्रैकेट के और ये अंदर है। अब इसको 6 को x से करोगे तो कितना आएगा? 6 को x से मल्टीप्लाई किया तो 6x 6x प्लस 6 को 3 से, यस नविष्ठा? 4x plus 5x plus 7x plus 6x प्लस ये करो, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 18 18 डिग्री। अब ये सब का कॉम्बिनेशन क्या होता है? इक्वल टू 360 डिग्री। अब ये सॉल्व करो, ये एक्स एक्स वाले एक साथ प्लस करो, प्लस ऐड करो इन एक्स एक्स वालों को, और ये डिग्री वाले एक साथ करो, जिसमें ये देखो प्लस करना है कि माइनस करना है कि क्या, ये एक साथ करो और फिर x की वैल्यू फाइंड करो कि x की वैल्यू कितनी होगी। यस नविष्ठा, ये x वाले सारे प्लस किया तो कितना आया? x वाली वैल्यूज को ऐड किया तो कितना आया? मैम 14x plus 7 14 4 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 6 21 21। 4 और 5 कितना होता है? 9। 9 और 7 16। 16 और 6 22। 22x प्लस ये वाले ये करो 10 और 18 कितना हो गया? बिकॉज दोनों प्लस वाले हैं। 10 और 18 28। 28 में से 20 गए तो कितने बचे? यहाँ पे ये माइनस वाला साइन आएगा क्योंकि ये 20 बड़ा है, तो इधर आएगा सिर्फ माइनस। अब 28 में से 20 गए तो 8 डिग्री। रुको एक सेकंड। 10
18, 10 और 18 तो 28 वो हो गया ना। हाँ, ये प्लस होएगा साइन, क्योंकि ये 10 और 18 28 हो गए, ये बड़ा है, -20 डिग्री, तो ये +8 होएगा। +8 इक्वल टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या होएगी, 22x पहले लिखो, ये होएगा 360 डिग्री माइनस, ये इधर जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, -8 डिग्री। तो ये कितना होगा, 360 में से 8 गए, 352। तो x की वैल्यू क्या होगी, 352 अपॉन 22। अब 352 को डिवाइड करो 22 से, कितना आएगा, मैम 352/5। बाय 5 क्यों आएगा, बाय 22, 22 है नहीं इधर, 352/22। 362। 62 क्यों, 360 में से तो हमने 8 माइनस किया है ना। No, mom is looking like 6. क्या कह रहे हो, 16. It's 16. विच इज 16। 352/22. हाँ, इट्स हाउ मच, 16 डिग्री, राइट। सो x की वैल्यू हमें क्या मिली, 16 डिग्री। सो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, उसके बाद वो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एंगल। अब हमें क्या एंगल क्या दिए हुए हैं, 4x डिग्री, 5x+2, 7x-20, 6x+3। तो चलो तुम इस एंगल C का वैल्यू फाइंड करके बताओ। एंगल C हमको क्या दिया हुआ है, 7x-20 डिग्री। अब इसके अंदर x की वैल्यू को रखो और बताओ एंगल C कितने का होएगा। x की वैल्यू पुट करो, x की वैल्यू हमने क्या निकाली, 16। Mom, 16. We have to find. This is the x value. You have to put the value of x as 16 in this 7x-20. You have to multiply 7 with 16, then subtract 20 from that. Yes, Navista, angle C कितना आया, Mom, 5x+2 is 16 plus 2 multiplied by 5, right? 5 क्यों कह रहे हो, 7x-20 में x की वैल्यू पुट करनी है। तो 7 और x की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, 16 -20। तो 7 को मल्टीप्लाई करो 16 से, जो वैल्यू आएगी उसमें से 20 माइनस करना है। 7 को 16 से मल्टीप्लाई करो,
मैम 4. 7 को 16 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? मैम हाउ मच यू गॉट? 7 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 112. 112. अब इसमें से तुम्हें 20 माइनस करने हैं, तो इसमें से 20 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 112 minus 20. मैम 102. 102 और 92. 92. यस, तो एंगल सी की वैल्यू क्या आई? 92. ठीक है, 92 डिग्री। ऐसे ही वो इन्होंने कहा है कि सारे एंगल की वैल्यू करनी है, तो इसमें भी इसमें भी एक्स की वैल्यू पुट करके, इसमें भी एक्स की वैल्यू पुट करके, इसमें भी एक्स की वैल्यू पुट करके ये आंसर निकालना है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमको एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, इसमें ये एंगल हमें दिया हुआ है 48 डिग्री, ये एंगल हमें दिया हुआ है x, ये एंगल हमें दिया हुआ है 4x, ये एंगल हमें दिया हुआ है 3x, पूरा, सॉरी पूरा, और ये एंगल हमें दिया हुआ है 4x। अब इन्होंने बोला है कि पहले तो x की वैल्यू फाइंड करो, फिर बोला है सेकंड कि एंगल ए बी सी की वैल्यू फाइंड करो। ये हमें दिया हुआ है ए, ये दिया हुआ है बी, ये दिया हुआ है सी, और ये दिया हुआ है डी। सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हमको क्या करना होगा? सारी वैल्यूज का प्लस इक्वल टू 360 डिग्री, ऑल दी एंगल्स। तो ये हमें क्या दिया हुआ है? x प्लस 48 डिग्री, ठीक है, एंगल ए। एंगल बी क्या दिया हुआ है? 4x प्लस सी क्या दिया हुआ है? 3x प्लस डी क्या दिया हुआ है? 4x। तो ये क्या होता है? 360 डिग्री। अब जल्दी से x की वैल्यू फाइंड करके दिखाओ, इसमें x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू फाइंड कर रहे हो नविष्ठा? 4x plus 3x plus 4x प्लस x, 11x. 11x प्लस x 12x। तो 12x इक्वल टू 360 डिग्री माइनस, ये प्लस है, ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 48 डिग्री। अब 360 में से 48 माइनस करो और इसको डिवाइड करो 12 से। ये माइनस करके क्या आएगा?
यस नविष्ठा, कितना आया माइनस? minus 48. 3, 60 minus 48. हाँ कितना आएगा? Ma'am, 312. 312। अब 312 को 12 से डिवाइड करो तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। Yes नविष्ठा, how much? Ma'am, 26. 26, राइट। अब क्या बोला है उन्होंने? x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, उन्होंने बोला एंगल ABC निकालो। एंगल ABC कितना होगा? 4x, राइट, 4x। तो अब क्या है, इसमें हम x की वैल्यू पुट कर देंगे तो कितनी आएगी? 4 मल्टीप्लाइड बाय 26, तो ये कितनी होएगी? यस नविष्ठा, 4 multiplied by 26. Ma'am, हाँ हाँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 26, नविष्ठा 104, ma'am. 104, Yes, ma'am. ओके यस, 104 डिग्री। तो समझ आया कि कैसे करना है सारा? Yes, ma'am. Quadrilateral triangles. So अब now we'll be meeting after your exams, right? Right नविष्ठा? Yes, ma'am. All the best for your exams, ठीक है? फिर हम एग्जाम्स के बाद 11th को मिलते हैं, ठीक है? Okay, ma'am. ओके चलो बाय, ऑल द बेस्ट, बाय।